आ गई है, आई है। चलो, इसमें इन्वर्टर नहीं है। बताइएगा ये क्या होता है, ये कच्ची पर्ची? आप आइएगा, आपका शुभ नाम क्या है? सर गुड आफ्टरनून सर, मैं अभिषेक सिंह हूँ सर। हाँ बताइए सिंह साहब। अभिषेक सिंह ना? सर हाँ बताइए सिंह साहब, ये कच्ची पर्ची क्या होता है? सर इसका कोई प्रावधान नहीं है तो सर। ये कच्ची पर्ची क्यों उन्होंने लिखी? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है आपने? सर इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित कर दी गई कब है कर सर। दी गई? सर अभी सर की गई सर, डेट में बता किसी के भी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, विभागीय जांच में निकल जाएंगे ये। Why has he been placed under suspension? सर ही हैज नॉट बीन प्लेस्ड। When there is no provision for kachi parchi, and he himself admits that he had prepared a kachi parchi, then why he has not been placed under suspension? Why Sir- you are saving him? सर वी आर नॉट सेविंग हिम सर। Then सर you विभाग place him, pass orders and then come. We'll take this matter at 4:15. सर Place him under suspension and then come. सर Otherwise, I'll have to record that your election commission is trying to aid a officer who has violated the provisions. और समझ के दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है। सर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो यही कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। सर कहाँ है आपकी वो जो है इलेक्शन बुक, उसमें क्या प्रावधान है? सर इलेक्शन बुक है सर, इसमें कच्ची पर्ची का कहीं कोई प्रावधान नहीं है सर। नहीं है। सर। तो उन्होंने कच्ची पर्ची बिगर उसके दी। कहाँ है आपकी चार्जशीट? उसमें क्या लिखा है आपने चार्जशीट में? एफिडेविट के साथ फाइल करी होगी ना आपने चार्जशीट? Charge sheet has not been filed. Why it has not been filed? Sir, we have issued show cause notices and then they, He's saying that charge sheet has been filed. no, It has been but latest my instructions were that we advised the state government Malad, to initiate a departmental inquiry against them. So now the departmental inquiry has been initiated against these three employees. बिगर चार्जशीट के कैसे डिपार्टमेंट इंक्वायरी Sir, इनिशिएट होती sir, है? the documents have been just recently supplied. Charge sheet. But this is something post filing of the affidavit. इसके नीचे था. नहीं, वी डोंट नो रिकॉर्ड पर क्या उतना ही बताइएगा। Can I, Malad, can I just brief your lordships on some count? And we have to abide by it. Malad, my instructions and my advice to my officer as well as the commission was that if there is a need for repoll, it has to be done. Those who have committed mistake, strictest form of even FIR should be registered against these Yes. officers. This is my view, Malad. Yes. And my lord, we are absolutely clear my lord, with all humility at my command. Your lordships also acknowledge that thing, irrespective of what was our conduct in throughout the electoral process, which your lordships have appreciated time and again. But even if there is a slightest mistake, even in one election, जी we will ensure that strictest form of action is taken against these तो officers. बताइए एफिडेविट बता No, my lord, may I, sir, मैं इफ यू बस प्रपोज फॉर रीपोल दैट्स एंड ऑफ द मैटर। 127 पे है इनकी चार्जशीट। नहीं, मैं एक मिनट, वो जो आप कह रहे हो वैसे चार्ज लगा ही नहीं। मैं एक निवेदन बस छोटा सा करना चाहता हूँ सर. Why I'm just trying to assist. This is my, at the outset, this is my statement at bar, my lord, and we are bound to follow the law. जी And especially before this court, my lord, we will not mince our word. What we mean, we will do it, my lord. जी And we have to follow the law. जी बस मैं एक निवेदन करना चाह रहा जी था. ये याचिका क्या है? जी सर, याचिका में जो मूल इनका एलिगेशन है जी वो ये है कि पोलिंग के दिनांक पर, पोलिंग कंप्लीट होने के बाद जी एक स्टैट्यूटरी फॉर्म होता है. जी उस स्टैट्यूटरी फॉर्म की जगह हमको एक कच्ची पर्ची दे दी जाती है जी जिसमें ये कहा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मतपत्र हैं वो इतने हमें पोलिंग पार्टी को मिले और वो पोलिंग पार्टी को मिलने के उपरांत इतने यूज हुए और इतने वापस हो गए. जी उसमें जो फिगर आया है जी और जो काउंटिंग में फिगर आया है वो अलग है। वो अलग अलग है. हाँ सो दिस इज द सोल एलिगेशन सर. yes, yes. अब इन सपोर्ट ऑफ दिस मे आई ओनली मेक अ हाँ, सबमिशन. हाँ, हाँ, हमारा सबमिशन सर इसमें ये था जी कि post the directions of this honorable court, initially of course my lords may know, I also know the scope of 226. जी My lords have a very wide purview of under 226 जी and Mohinder Singh Gill and other cases are जी explanatory, my lord. जी There is a bar of 243O which as it is we take as a preliminary objection, जी but on facts my lord may I respectfully submit. Now my lord, in this case he says इनके दो फैक्ट्स थे. हमने एक तो ऑब्जेक्शन ये लिया था कि भाई जिस दिन काउंटिंग थी जी
काउंटिंग में धारा 80(5) का प्रावधान होता है, उसमें कई फैसले लीजिए। माननीय न्यायालय ने दिए हैं। हाँ। रूल 80 सब रूल 5, हाँ, सर रूल 80 सब रूल 5 ये कहता है कि काउंटिंग के दौरान जी। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो देन एंड देयर वहां लॉन्च करना नहीं, होगा। नहीं, नहीं, ऑब्जेक्शन दूसरा है कि जब इनका दूसरा है, आपने पर्ची पर लिख आई एम कर कमिंग दिया सर, मैं ये वोट का एक्स वोट कास्ट हुए, तो उसके बिल्कुल। बाद में वो वोट बढ़ कैसे गए? सर मैं इतना सा ऑब्जेक्शन है, माय वो काउंटिंग के दिन कैसे उठाया जाएगा? काउंटिंग के Can I- दिन तो आपत्ति ये उठाई जाएगी कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी की हाँ, जा रही है। मैं सर मैं आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जी। मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी में अपने सबमिशन जी, रख रहा हूँ जी, सर। जी। इफ योर लॉर्डशिप्स आर सेटिस्फाइड, जी। अदरवाइज माय लॉर्ड वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी जी। डन, माय लॉर्ड, इमीडिएटली। जी, सर हमारा पहला ऑब्जेक्शन ये था कि भाई काउंटिंग के दौरान अगर आपके पास इस तरीके की कोई कच्ची पर्ची थी जी, और आपको ये फिगर मालूम था कि इतने मत नहीं थे, जी, ये ज्यादा मत निकल रहे हैं काउंटिंग में, जी। तो पहला कर्तव्य यह है कि 80(5) के अंतर्गत आपको आपत्ति वहीं दर्ज करानी जी। थी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनका ऑब्जेक्शन काउंटिंग प्रोसेस का नहीं था, जी, मगर आपत्ति तो फिर भी दर्ज हो सकती थी। जी। इनकी आपत्ति ये थी कि जब मेरे को पोलिंग के दिन ही पता लग गया कि जी। इससे ज्यादा मतपत्र अंदर नहीं है, जी, तो फिर मतपत्र ज्यादा कैसे निकले? जी। दिस इज देयर हिज Yes, सबमिशन। yes, yes. आई आस्क्ड माय ऑफिसर्स वेरी वेरी कैटेगोरिकली ऑन दिस जी। पॉइंट। इसको सर हम टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रावधान है। जी, नंबर 1, जी, जो मतदान हमारी पोलिंग दल जो होता है, जी, मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2 एवं मतदान अधिकारी 3। जी। ये मतदान अधिकारी 3 जो अधिकारी रहते हैं अपार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिसर, हाँ। ये उस दल का पार्ट रहते हैं जहां पे पोलिंग हो रही होती है। और 4 लोग रहते हैं। 4 होते हैं सर। जी, इसमें सबसे पहले मैंने पूरा समझा, इसमें पहला प्रावधान यह है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास चिन्हित प्रति होती है। चिन्हित प्रति ये होती है सर कि अगर मैं वोटर हूं, मैं उसके अंदर जा रहा हूं पोलिंग बूथ में, तो सबसे पहले वो मेरा वेरीफाई करेंगे, हाँ, ठीक, मेरी लिस्ट में साइन करेंगे और टिक मारेंगे। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड्स, में काइंडली सी दिस इज एन इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के सरपंच का मामला है। इसमें आप लोग अभी आप वो मशीन नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, पंचायत में हम नहीं कर मैनिपुलेशन पा कम रहे। हो जाएगा? नहीं, वो सर उसके मशीन क्यों नहीं मोडालिटीज इस्तेमाल एंड कर दिस रहे? इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड। मशीन क्यों नहीं यूज कर रहे? बताइए सर इस बार पंचायत सरपंच और जनपद जिला पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराए गए थे और मशीनें हमारे पास कम थी, तो जनपद और जिला मशीनें पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती है, उसमें क्या था? सर चलिए खैर, दैट इज नॉट द इशू। सर, हाँ, सर उसमें ये हुआ कि आई गो टू दी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, हाँ, मेरा चिन्हित प्रति में मेरा आइडेंटिफिकेशन होता है जी, और वो मुझे आगे फॉरवर्ड करते हैं मतदान अधिकारी 2 के पास। जी, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो हैं, जी। वो बताइएगा अगर गलत बोलूं, पंचायत के सरपंच और पंचायत के पंच की जो पर्ची होती है, बैलेट पेपर होता है, वो हमको अलॉट करते हैं और वहां पे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। उसको प्रतिपंड कहते हैं, काउंटर फॉइल, क्योंकि उस जो मतपत्र होगा कॉलम वाइज, उसका एक प्रतिपंड फाड़ के वो अपने पास रख लेते हैं। नाउ दैट प्रतिपंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। यस, उसके बाद सर हम पंच और सरपंच का अपना मतदान करते हैं। जी। उसको करने के बाद हम मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाते हैं। हाँ, वो सही लगा। वहां पे हम नहीं सर, शाही तो सबसे पहले वाले में लगा दी। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 हमको अब प्रतिपंड अपने पास रखेंगे और हमें मतपत्र देंगे जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का। जनपद सदस्य, क्योंकि सर इसमें हमें 4 वोट डालने को मिलते हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य, ठीक है। जिला पंचायत के सदस्य का। ना ये एक वोटर को 4 मतपत्र मिलते हैं। इन केसेस में कम मिल सकते हैं अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अविवादित तौर पर किसी ने सरपंच चुन लिया। नाउ दिस इज द प्रोसीजर सर। वी हैव फाइल्ड एफिडेविट ऑफ ऑल दीज 4 पीपल, जी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जी। मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जी। एवं 3। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अबव मतदान अधिकारी वो क्रमांक मेन ही इज द हेड ऑफ द पोलिंग बूथ। and he has issued this पर्ची saying that 494 votes. सर आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सर मेरा सबमिशन ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जी, उन्होंने ये कहा कि मेरी ये जो मैंने तैयार किया था, ये अपने कैलकुलेशन के लिए तैयार किया था। is he, मैंने is he authorized to he is not authorized. The मैं just thing complete, is that not only conduct of election but faith in the machinery is very important. And if your Matdan Adhikari, who is superior to polling officer number 1, 2 and 3, without collating the details, issues a पर्ची, whether बिल्कुल गलत है, legal बिल्कुल or गलत। illegal, if it was सर, इसने इशू नहीं किया, यही मेरा एक आग्रह है। अच्छा कि इन्होंने अपने आप लिख लिया। नहीं, इफ द कोर्ट नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ सर। इफ योर लॉर्डशिप में नहीं, पहले बताइए तो इशू नहीं किया का मतलब क्या होता है? सर, उन्होंने मेरे को जहां तक इनका इंस्ट्रक्शंस है, इन्होंने एक पर्ची तैयार करी, इन्होंने मतदान अधिकारी, वो पोलिंग ऑफिसर ने हाँ
पोलिंग ऑफिसर ने अपनी एक पर्ची कैलकुलेशन के हिसाब से तैयार करी, हाँ जो एग्जैक्ट थिंग है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर टू दिस कोर्ट। जी सर 50-50 की इनकी गड्डियां होती हैं, जी वो 50 मतपत्र की जो गड्डी होगी, या काउंटर फॉइल ना, काउंटर फॉइल, वो काउंटर फॉइल 50 इन्होंने अपनी उसमें असेस नहीं करी थी, उसकी वजह से अच्छा अब इसका इसका सर my lord मैं काइंडली सी माय बोनाफाइड्स, रेस्ट my lord वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। जी 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 सर इसमें एक दूसरा मापदंड है, जी जैसे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 का मैंने उदाहरण दिया, 2 और 3 में डिफरेंस ये है कि एक देता है हमको मतपत्र और काउंटर फॉइल अपने पास रखता है जी पंच और सरपंच के चुनाव के लिए, और दूसरा देता है जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए। जी सर जनपद, जिला पंचायत जी। और ये सरपंच का, जी। तीनों के नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, किसको मिले नहीं, जितने डले थे हाँ डले वो सब एक ही फिगर आ रहा है। जी तो मैं हाइपोथेटिकल वो नहीं कर रहा हूं, बस एक बोनाफाइड अपना दिखाना चाह रहा हूं कि जनपद सदस्य का भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स वही आया है जो हमने फॉर्म 15 में दर्शाया है, जिला पंचायत का भी वही आया है और सरपंच का भी वही आया है। पंच का डिफरेंस इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अविवादित हो जाते हैं जो बिना कंटेस्ट के जीत जाते हैं, तो उसमें वोट नहीं डालने की जरूरत पड़ती। बट ये तीनों सदस्य के जो पद है, सॉरी सारे सारे पंच आपके निर्विवादित रूप से चुन लिए गए? नहीं, उसका भी फिगर है सर, उसका बट भी उसको figure- मैं रिलाई इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेट डिफर्स फ्रॉम दी that will फिगर विच differ वी आर रिलाइंग। because अगर 5 पंच चुने जाने हैं, जी 2 जो है निर्विवादित रूप से चुन लिए गए, तो 3 के लिए वोटर्स तो वही रहेंगे। हाँ, वोटर्स वही रहेंगे। तो फिर आपका ये वाला सबमिशन तो जो है नहीं बट उस लॉजिकल पोलिंग नहीं है। पंच एक ही होता है। नहीं आपको समझाया नहीं सेक्रेटरी साहब ने अभी ढंग से। ये जो मैं I'm शब्द sorry. कच्ची पर्ची बार-बार मैं कमिंग मैं एक्चुअली देर ये शब्द इन्होंने इजाद किया है। हाँ। एक्चुअली दिस इज द थिंग व्हिच वाज सप्लाइड टू एवरी सर, may I just point out, sir? एजेंट्स वहां पे उपलब्ध थे, उनको यही दिया था Sir, उन्होंने। can I just complete and then my साइन कर। हाँ, हाँ। my senior में हाँ, अब हाँ, सर ठीक है ना, समझाइए। इसमें सर एक तो हमारा ये सबमिशन था कि now my lords we have filed affidavits हाँ। of all these 4 officers or employees who were in duty. हाँ। मतपत्र पोलिंग ऑफिसर ने अपनी बात बताई है, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने ये एफिडेविट दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट जो हमारा स्टेट्यूटरी फॉर्म हमने जारी किया था उतने ही मतपत्र जारी हुए थे और उतने ही मतपत्र यूज हुए हैं। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज। सर जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पोलिंग ऑफिसर के अधीन आते हैं, जी सर, तो देयर एफिडेविट्स दे मे बी द पीपल हु प्लेड फ्रॉड। उन्होंने बाद में चुप्पी आई से बो जारी डाउन कर टू योर दी। लॉर्डशिप्स। They will try to defend themselves. The issue is that they all are accountable to the polling officer, and it is the polling officer who had issued this kachi parchi or whatever, saying that 494 votes were cast. So Sir, I will rest my entire argument and we will concede in this matter. But your lordship may kindly consider our bona fide argument. once you concede, then it नहीं concede मैं नहीं, मैं तब कर लूँ सर जब मैं असंतुष्ट रहूँ कोर्ट को समझाने में। मेरा निवेदन इतना सा था, let me just मैं I just complete my lord. I'll just in the concluding paragraphs. सर मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 ने जो एफिडेविट दिया है उसमें जो एक सेकंड पार्ट है उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो चिन्हित पर्ची होती है, चिन्हित सूची इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। सेकेंडली जो काउंटर फॉइल्स हैं, काउंटर फॉइल्स इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। थर्डली ऑल काउंटर फॉइल्स, इसमें हमारे पास तीनों बातों का एक ही जवाब है। सर चिन्हित पर्ची आप मेंटेन करते हैं, my lords, कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है आप टिक लगाते हैं। नहीं उसको सील करने के बाद सबके सिग्नेचर लेते हैं। सारे कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या? सही। कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं तो बताइए, उसको चिन्हित पर्ची को सील करने के बाद कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के या उनके प्रतिनिधियों के? सर ये जो पूरी प्रोसेस अरे है आपसे जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए सर। सेक्रेटरी साहब। चिन्हित पर्ची इन्होंने 3 स्टेजेस बताई, सर। एक चिन्हित पर्ची हो गई, एक काउंटर फॉइल हो गई, ठीक है, जिससे कि आप रिकॉर्ड को मैच कर रहे हैं, और प्लस पोलिंग बूथ ऑफिसर जो है वो जो आपके मतदान वो है 2 और 3 1, 2, 3 जी। उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो चिन्हित पर्ची है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन द पोलिंग बूथ, यू विल बी टिकिंग हिज नेम सो दैट you come to know that how many votes are being cast, सर whether it is a statutory document and it is signed by the representatives or the polling agents of the candidate. सर ये P1 चिन्हित करता है पर किसी द्वारा साइन नहीं होता। नहीं होता ना, तो ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये, सर। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर। अब चलिएगा काउंटर फॉइल जो है, सर। काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई सर। इसका आप सिग्नेचर कराते हैं शाम को सर polling ये मतदाता उस पे साइन करता है काउंटर। मतदाता तो नहीं, मतदाता तो वो तो एक दूसरा इशू आ जाएगा, वो अभी सर। इस बिंदु नहीं है। अब मतदाता को साइन करा के क्यों उसको चिन्हित कर रहे हैं,
सर जबकि वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वोट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती है उससे। उसमें सर चलिए नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू दैट इशू, दैट इज Sir. नॉट द सर ये इशू नहीं दिखाता इम्पोर्टेंट। उसमें कि किसको वोट दिया। नहीं Just counter वो point. हमें मालूम है, काउंटर फाइल में नंबर दिया रहता है, हम भी वोट डालने जाते हैं, उस नंबर से आप हमारा वोट निकाल के देख सकते हैं उस नंबर का वोट किसने डाला है। ठीक है, सॉरी, दैट्स अ लार्जर इशू which we will discuss in some other appropriate case. My lords are Right. Sir. we get assisted by your lords. नहीं, ठीक है, इशू इज वेरी सिंपल, क्या वो कितनी काउंटर फॉइल्स आपके पास बची, 50-50 की किताबें आई, सर ठीक है, 11 किताबें का इस्तेमाल हुआ, सर 555, तो कितनी काउंटर फॉइल बची, कितनी किस नंबर से किस नंबर की, इस पे आप क्या कैंडिडेट के या उनके पोलिंग एजेंट के साइन कराते हैं? सर इस पे नहीं कराते सर। नहीं कराते ना, तो सर। फिर आपका इंटरनल रिकॉर्ड हो गया सर। आपके मैनिपुलेशन के लिए कि जैसा चाहे उसको मैनिपुलेट करेंगे बाद में बैठ के। फिर कच्ची पर्ची जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने लिख के क्यों दे दिया 494 वोट गिरे, 494 मतदान 494 हाँ सर। बैलेट्स जारी किए गए, पेटी में डाले गए मतपत्र 494। पेटी में नहीं डाले, कोई जेब में रख के घर ले जाए तो आदमी क्या करेगा? इतना हाँ मतलब हाँ, इतना तो लिखा अगर आप अंदर गए वहां पर सील लगाने के लिए और आपने उन्होंने उसको लिख- जेब में रख लिया मैंने लिख के दिया। तो बाहर निकल के तो कोई जांच नहीं होती ना। वी आर नॉट कंसर्न पेटी में कितने गिरे, 494 जारी किए, जारी किए। तो द नंबर कैन नॉट बी मोर देन 494। तो इसमें एक आग्रह था, if your lordship team, Hmm. sir, when your lordships raise this particular query which is very pertinent going to the root of the case, then my lords we under rule 87 में हमने एक दरखास्त लगाई थी। हाँ हमने ये कहा था कि जो रिकॉर्ड वहाँ सील्ड प्रेमाइसेस में है, हाँ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुका है नहीं की प्रेजेंस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के बाद में नहीं होता, ये तो उस वक्त 1 घंटे में सब कार्यक्रम हो जाता है। हम लोग को वो मत बताइए, अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर था चुनाव के समय में तो उस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने क्या किया, वो इस मतदान केंद्र में कब गया, उसने क्या देखा, ये सब मत बताइए हमको। आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कितने इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट। lords may I हाँ। your lordships में kindly see हम we are only with a limited submission sir, your lordships has asked You us will have to satisfy that there was sufficient check and balance in the eyes of the public where no manipulation was possible. आपने कहा चिन्हन पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते, काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई, कितनी बच गई, काउंटर फॉइल तो बचेंगी, सर। मतपत्र कितने जारी हुए, कितनी काउंटर फॉइल बच गई, इसकी गिनती करके इस पे किसी के हस्ताक्षर नहीं होते। सर काउंटर फाइल पे जो मतदाता है केवल उसका अरे भाई उसके होते हैं, उससे क्या हुआ, मतदाता के साइन सही है कि नहीं है, हमें इसमें ये चुनाव अगर मैं प्रभावित होने से नहीं डरता, हम तो सब करा, बट अगर ये प्रभावित होते हैं तो सर ये अकेले नहीं होंगे, फिर वो सभी के फिर से हाँ चुनाव सभी के होने दीजिए ना। सर। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट बिकॉज योर क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। नो इट्स नॉट अबाउट योर लॉर्डशिप पे काइंडली सी मलॉर्ड में काइंडली सी जिला पंचायत जनपद सदस्य में भी उतने ही मत निकले हुए होंगे, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद एंड इट। नो वन हैज चैलेंज दैट सर। if somebody is sleeping over it, सर बट अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 1000 लोगों को उसने खाना सर्व किया पेंट्री से लाकर या स्टेशन से लाकर, 999 लोग कुछ नहीं बोले, एक आदमी बोल रहा है, मतलब वो बेवकूफ है। अगर आपके एनालिसिस पे चलें, क्योंकि 999 लोगों ने तो बोला ही नहीं कि खाना खराब है। मेरा एक आग्रह था सर, इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली कंसिडर मतलब once we are disputing the procedural irregularity and what we are seeking is that if your lordships have directed Credibility of your officer is in doubt and your delay in taking action against the officer shows that there is lack of transparency. So- This point was brought to your notice long back. You should have taken that action then and there Yeah. itself. सर yeah किस तारीख को लिया एक्शन, किस तारीख को पिटीशन का नोटिस मिला था आपको? चलिए आइए सर, वहां से शुरू करते हैं। अरे पहले दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा they किस were तारीख को नोटिस मिला है आपको? Lord, he wants to address to the court on some नहीं, we'll hear him. There is no urgency. Sir. Other cases which will not be taken up will be adjourned. कोई डेट देने की जरूरत नहीं, adjourn कर दीजिएगा सिंपली। copy 4:30 के बाद नहीं बैठूंगा मैं। सर बताइए। मे आई रिक्वेस्ट सर हाँ सर नहीं, इसमें इसमें बताइए आपको नोटिस कब मिला, इसमें नोटिस कब हुआ है? सर एक मिनट निकालिए। आपको 9/7/2022 को अपीयर हो गए थे इलेक्शन कमीशन के लिए, सर। ठीक है? उस दिन ये बात आ गई थी 494 और 544 वोट की, ठीक है? रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही अपीयर हो गए। ठीक है, अपीयर हो गए। फिर आपने क्या कार्रवाई की इस अधिकारी के खिलाफ और किस तारीख को आपने शो कॉज नोटिस जारी किया है बताइएगा? 9/7/22 के बाद
And in order dated 10/7/2023, your I- lordships have specifically asked. I will just give the all relevant, sir, we have annexed those documents also. अरे आप तो डेट बताइए ना भाई, मैं बता, डेट बताइए कब आपने एक्शन लिया है, फिर आपके अधिकारी को सुनते हैं। मालूम पड़ जाएगा हाउ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल यू आर। इंडिपेंडेंस पे सर कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? मैं इतना तो वाउच करूंगा सर, अरे मेरा आपके निवेदन वाउच पूर्वक आपके वाउच करने से कुछ नहीं होता, आप तो डॉक्यूमेंट से दिखाइए किस तारीख को एक्शन लिया है आपने। 15/6 के बाद, your lordship, after your lordship direct, 15/6 के बाद भी। तो साल भर तक आप क्या कर रहे थे? specific direction. ये तो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, 15/6 के बाद एक्शन लिया है। नाउ माय लॉर्ड्स, में काइंडली सी रिस्पोंडेंट काउंसिल अपीयर्ड। 15/6 के बाद ही सर, इसमें मेरा जो पहले ही स्टेटमेंट बार पे है सर, your lordships are not satisfied, sir. Repoll is not a difficulty, but we don't want, my lord, that with all humility that a wrong precedent is set. नहीं नहीं, इट इज नॉट Otherwise, क्वेश्चन sir, रॉन्ग प्रेसिडेंट। sir, यू all- कन्विंस मी। सर मैं वही कन्विंस, फिर मेरा एक निवेदन था सर। हाँ। Your lordships may kindly appreciate the provision of repoll for me. The provision of repoll under Rule 72 says that even if there is a small irregularity, but the result of the election is not materially affected. रूल 87 Sir, 72 sir. 72 एक- पढ़िए रूल 72। सर इसमें भी इंग्लिश में इसमें पंचायत निर्वाचन नियम 19 किताब भी नहीं है आपके पास? नहीं सर, Fresh poll is- my book is misplaced. I have just called for another book, sir. अच्छा। Sir, Rule 72. Hmm. Fresh poll in case of destruction, tampering of ballot boxes or voting machine, जी। or due to procedural irregularity. यस। If at any election, A, any ballot boxes or voting machine used at a polling booth is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained. ठीक है, आपकी बात समझ गए। कितने वोट का अंतर है दोनों के बीच में? कुछ 50 सर। 50 का अंतर है ना? सर, 50 नहीं, 50 ये का तो ये, जानते हैं। आपके कितने वोट? 50 का ये फर्क आ रहा है। 50 के? हाँ। बट सर उसमें असर्टेन करने के मापदंड मैंने 3 निवेदन किए। हाँ अगर हम चिन्हित सूची नहीं, में- अगर भाई 100 का अंतर होता तो आपका ये आर्गुमेंट स्वीकार करके भी पिटीशन खारिज कर देते। 50 का ही अंतर है और 50 का ही डिफरेंस आ रहा है। एक और क्वेरी की थी माननीय, क्वेरी को कि ये छोड़िए, 644 कैसे हुए? 644 नहीं, 544। सॉरी 544 कैसे हुए? सर उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया अपने एफिडेविट में, जब भी ये मतपत्र दिए जाते हैं तो वो +10% करके उसको दिया जाना है। दिस इज ये प्लस प्रावधान 10% करके दिया ना, मतलब My lords, may your lordships may kindly see my affidavit for a minute. You have explained it, sir. My lords, may kindly see internal page 19 of my affidavit. कंप्यूटर से बताइए कौन सा पेज है आपका? ये वाला है। अरे 39/23 है आपका एफिडेविट। सर ये बताना। सर मैं 39/23 मतदाताओं internal को page 19 सर मतपत्र जब इश्यू किए जाते हैं पेज सर 19 एक मिनट एक पहुंचने मिनट तो सर। दीजिए वकील साहब। पे कहाँ पे है? अब पेज 19 कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं आप? Sir, page 19 I will अगला पैरा page 19 में sir the relevant extract of the reply I am citing, sir. जी इसके यहाँ से start करो। Number 2, बिंदु क्रमांक 2, कहाँ है बिंदु क्रमांक sir, 2? the last 3 lines of page 19, sir.
बिंदु क्रमांक 2, हाँ जी हिंदी में है। बिंदु क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में मतदान केंद्र क्रमांक 145 में मतदाताओं की संख्या तथा उनके अनुपात में जारी 650 मतपत्र का आधार के संबंध में मतदान केंद्र 145 में सम्मिलित वार्डों की कुल संख्या वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक है, जिनमें मतदाता सूची 2022 अनुसार कुल मतदाता की संख्या 586 अंकित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक सो एंड सो दिनांक 4/11/2020 में मतपत्र मुद्रण हेतु दिए गए निर्देशों की खंडिका 12(2) के अनुसार कुल मतदाताओं में 10% जोड़कर उसके अगले दशांक तक पूर्णांकित किए जाने के निर्देश हैं। इस प्रकार मतदान केंद्र क्रमांक 145 पर जारी मतपत्रों का आधार कुल मतदाता प्लस we are not concerned with it. Don't try to dilute. We are not concerned with it. आपने 800 छप्पा है कि 1000 छप्पा है? That is not the controversy before us. Controversy is different. It is not the case कि आपने ज्यादा छपवा के कहीं उनको वो कर लिया। आपने जितने 586 थे 550 जारी किए, 544 का आया, उधर आंकड़ा पहले 494 का आया था और वही फर्क है 50 वोटों का। अगर ये अगर सूची जारी नहीं होती या इसी के साथ 494 मत पड़ते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर आपके राइवल कैंडिडेट 60, 70, 100 वोट से जीतते तो हम इनकी पिटीशन खारिज कर देते कि भाई 50 चलिए ये हटा भी दीजिए, तो भी वो जो है 10 वोट से, 50 वोट से, 20 वोट से जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बताइए। सर मेरा he wants to secretary wants to address। हाँ ठीक है सेक्रेटरी साहब। सर इसमें जैसा आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वी जस्ट वांट टू सी कि हमारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इसको पढ़नियत और अपढ़नियत लिफाफे हम कहते हैं सर, उसका एक बार हम परीक्षण कर लें सर और उसको हम मिलान कर दें। कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं तो हम लोग इसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे सर। बस एक बार हम प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं सर। करेंगे आपका प्रोसेस सर 1 हफ्ते लगेगा सर, हम कर देंगे के अंदर सर We will do फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट and we'll come back sir with the findings and all those। ठीक है, श्री अनिल लाला लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री सिद्धार्थ सेठ फॉर द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन along with श्री अभिषेक सिंह secretary to the Madhya Pradesh State Election Commission, Shri Sarvate for the respondent number. Intervener. Next. Working Shri 7 Siddharth Seth has put forth several submissions, namely, there is a foolproof insulated system to observe transparency in the process of election. He submits that firstly, a voter is required to cross channel 1 where first officer, क्या बोलते हैं उसको, मतदान अधिकारी क्रमांक मतदान अधिकारी क्रमांक him as a voter। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ticks on the list available with him as to who has gained entry in the polling booth. Thereafter, once voter is identified, he moves to Matdan Adhikari Kramank 2, who obtains his counter signature on a counterfoil and issues a ballot paper for the election of Panch and Sarpanch. Thereafter, he moves to the Matdan Adhikari Kramank 3, who issues him ballot paper after obtaining his signatures on the counterfoil for the post of जनपद पंचायत एंड जनपद पंचायत जिला पंचायत जिला सदस्य पंचायत सर। जनपद पंचायत एंड जिला पंचायत। ये फोन किसका इतना मधुर भाषा में बज रहा है? सर वो हमारे पांडे जी से ही गलती हुई। हैं? माय कलीग प्रवन लग्न पांडे से। अच्छा, प्रवर लग्न पांडे हैं, उनकी लग्न सही नहीं चल रही है अभी, उनको बता दीजिएगा। आज पीछे रखा है सर। अच्छा अच्छा, उनकी लग्न सही नहीं है इसलिए उनको पीछे रखा है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर and all these details are being cross-checked and it was found that there is no discrepancy in the number of ballots issued, that is 544. Next para. Reading from the affidavit filed by application number 39 of 2023 from page 19 onwards, wherein in subpara 7 Roman hai bracket में 2 recorded in Hindi, it is tried to impress that number of ballot papers are to be printed 10% in excess of number of voters
rounded off to the nearest decimal, full stop. Therefore, 650 ballot papers were printed, full stop. It is also submitted that Rule 72 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995 provides for the situations in which fresh poll in case of destruction, tampering, etc. of ballot boxes or voting machine or due to procedural irregularity can take place. Full stop. It is submitted that in terms of Rule 80 within bracket 5 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, petitioner was required to make a complaint at the time of counting. Next para. It is further submitted that they have by the secretary to the election commission that they have taken up this matter in as much as the polling officer was not authorized to issue a kachi parchi, in as much as there is no provision in law, under law in the law for issuance of kachi parchi. Full stop. Next pair. After hearing Shri Siddharth Seth and his secretary Shri Abhishek Singh, certain issues which are crux of the matter needs to be again highlighted. Firstly, dispute is not in regard to the number of ballot papers printed. Therefore, reference to the affidavit filed under application number 39 of 2023 as mentioned above has no relevance to the facts and circumstances of the case. Next para. Controversy in short and crisp form is limited to the aspect that a kachi parchi was issued by the polling officer who, according to Shri Siddharth Seth, is also a superior officer to Matdan Adhikari Kramank 1, Matdan Adhikari Kramank 2 and Matdan Adhikari Kramank 3, certifying that 494 ballots were issued for the relevant election. बीच में नहीं नहीं मेरा नहीं I'm sorry. Next. It is submitted, referring to Rule 72, it is sought to be made out that when the difference is so significant that the alleged manipulation could not account for that difference, then there is no purpose in holding a fresh poll. Next para. However, the fact of the matter is, as admitted by Shri Siddharth Seth and his secretary Shri Abhishek Singh, so also acknowledged by learned counsel for the intervener, that the difference between the petitioner and the intervener is only of 50 votes. And that is the difference between the number of number of ballot papers which were issued as per the kachi parchi issued by the polling officer and the votes which were actually polled. That is, as per kachi parchi, 494 ballot papers were issued, whereas in counting, 544 ballots were found on which votes were casted. Full stop. Thus, the difference being exact, comma, manipulation appears to be prima facie justified, and that speaks about the credibility of the whole election process for the concerned constituency. Next para. At this stage, Shri Abhishek Singh submits that they have no difficulty in holding a fresh poll, but they be granted 7 days time to complete the procedural aspect and come back to the court. On his request, 7 days time is granted to do the needful list on 8th November, top of the list. Only, हम जांच करना चाहते हैं. हाँ करिएगा जांच. चलिए. only, To conduct repoll. only one submission. अच्छा क्या लिखिएगा एक सेकंड. Whether repoll is necessary or not. ठीक है क्या लिखिए. हाँ ठीक है करेक्ट करा देंगे आपकी. एक मिनट रुक जाइएगा. But it will be subject to the outcome of their internal inquiry, for which they pray for 7 days time. Next para. At this stage, it will not be out of place to record conduct of the election commission, in as much as when this case was listed for the first time before this court on 9/7/22, then Shri Siddharth Seth, learned counsel for the election commission, had appeared.
full stop. Admittedly, action against the polling officer has been taken after 15/6/2023 when a detailed order sheet was recorded, full stop. Thus, it is prima facie evident that till the whistle was blown, Election Commission was trying to cover up the lapses of the polling officer, and they never came out with a defense that Kachi Parchi is not part of the election process and polling officer was guilty of violating the norms and rules and regulations framed in this behalf, and otherwise they would have taken action against the polling officer, full stop. The issuance of show cause notice, when according to Shri Abhishek Singh, Kachi Parchi is not a norm and there is an apparent violation of the rules and regulations by the said polling officer, reflects that how flexible is the Election Commission and the state government in their attitude to deal with such officers who are, according to the officer of the Election Commission, prima facie guilty of violating the rules and regulations, full stop. Let inquiry be conducted on or before 6th November, list on 8th November. This would be in accordance with Rule 87, sir. I don't know any rule. Permission आपसे ही require. हमें नहीं, हम बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे, सॉरी. डॉक्यूमेंट ही नहीं खोल सकते. मत खोलिए, आपको जो इंक्वायरी करना है कर लीजिए. I'll not permit you to mess with anything. No, Rule Sorry. 87. आपको जो इंक्वायरी करना है करिए. I'll not grant you any permission. Sorry. This is not your. बोलिए, आप बोलिए. Please don't now. You are wasting time now. Sorry. Yes. No. Document does not carry much weight, especially when there is a discrepancy of 50 ballots on this very booth, and that is the difference of winning or losing between the petitioner and the intervener. And only one submission. Your lordships, on the last date of hearing, specifically on my submission, directed them, my lord, that whatever they are saying is with regard to the preparation of form 15, my lord, that उसमें corrections बाद में हो गए थे. तो rule 67 is very specific. अगर इन्होंने वो कच्ची पर्ची की जगह फॉर्म 15 उस दिन जारी किया था तो सबकी उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि उसकी सबसे एक्नॉलेजमेंट लेनी है. आपने डायरेक्शन दिया था पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल नहीं किया अपने FTP. At this stage, Shri Anil Lala submits that form 15, which is required to be issued under Rule 67 within bracket 3 of Madhya Pradesh Nirvachan Niyam 1995, has also not been produced by the Election Commission to show that they had filled form 15 in compliance of the sub rule 3 of Rule 67 and had obtained signatures of all the candidates or their polling agents. चलिए, let this compliance be also made on or before next. That is the reason why, sir. मेरा एक आग्रह है, बस इतना सुनिए. सर, हमने एप्लीकेशन ही वही मूव करी है. ये सब सील्ड है. तो जैसे ही हम इंक्वायरी कर लेंगे, हम अपना एफिडेविट दे देंगे कोर्ट के सामने. सर, वो इसी अदरवाइज कोई इंक्वायरी हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज सील्ड. वी हैव ब्रॉट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड. काइंडली सी एफिडेविट. नियम में कहाँ प्रावधान है हमसे परमिशन लेने? 87 है सर. आई हैव साइटेड दिस. एक मिनट. 87 पढ़िएगा. चलिए सर, नियम 87 पढ़िए. हाँ, क्या लिखा है? हम कर सकते नहीं साइट किया. हैं. Rule 87, your lordship may see internal page. Yes, sir. क्या इंटरनल पेज 10? रूल में पढ़ेंगे, Of किताब the में पढ़ेंगे? नहीं वो वहाँ पे मैंने साइट भी की. आपकी साइट करने से क्या होता है? किताब से पढ़ा जाता है. I'll read the किताब- rules. I'll read the. किताब अंग्रेजी में, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसको? सर वो सब खोल देते हैं. इंग्लिश में. मतलब 86. of election papers. While in the custody of the district election officer, the packets of unused ballot papers, the packets of used ballot papers, whether valid, tendered or rejected, the packets of the counterfoils of used ballot papers, and the packets of marked copies of voter list shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced before any person or authority except under the order of the competent court or authority. तो अथॉरिटी है तो आप तो हैं तो अथॉरिटी इलेक्शन नहीं कमीशन है. सर, अभी ये तो अरे भाई, इसको सब पढ़िए तो पूरा. किसके लिए लागू होता है? While in the custody of the district election officer, now Yes. it is part of the record of the election commission. no.
this is all sealed there in the office of the तो आप district. बुला लीजिए, you are the competent authority, competent My court lords, or the authority. my lords, मैं observe. No, I will not observe anything. Sir. Why should I observe? You interpret this rule and do whatever you want to do. I am not granting you any Your permission. lordship have granted interim relief in this case. हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना. Offices are seized of this matter. हाँ, ठीक है. That is the reason why No, I'm no, 87 I am sorry, taking sorry. permission of the court. आपको बहुत पहले परमिशन लेना चाहिए थी. बिल्कुल, आपने इतना लगाई साल भर का टाइम बर्बाद कर दिया. कब लगाई थी आपने आवेदन? चलिए, सर लगाई थी 21 को हमको permission। कब लगाई थी आपने तो आवेदन? 20 को ऑर्डर हुआ, 21 को हमने 21 2022 को. नहीं नहीं 23 को 23 को। तेईस अभी की बात कर और तभी कैसे? But अरे you भाई, may- sir, then in that case, your Sorry. lordship may just hear me and observe. now you two are of my- no, sir, two of I will my- not observe anything. Sir, That's end of the. officer of चलिए this- दूसरा केस बुलाइए. Sir, एक minute, 38 lordship, kindly hear. हाँ. 38 please, sir. IR में काइंडली भी कर हाँ, IR to No, continue. but my lord may, my lord in that case, your lordship kindly appreciate. मैं बहुत निवेदन से, my lord, my only submission is that in that case, your lordship may observe. Right from day one, we have filed and we have taken a stand, my lord, that these are disputed question of facts for which election petition would be the remedy. I have quoted 5 orders passed by the honorable division. जब फाइनली सुनेंगे तब आप या तो ये बता दीजिए आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं. Sir, बीच बीच में नहीं, बीच बीच में. इंक्वायरी के लिए हमको Sorry, परमिशन की जरूरत है। Sorry, no. My lord, if your lordship would just, the secretary would conclude by this. No, no, nothing, Clear. Sir, nothing, की छोटी सी not, clear. nothing, nothing. You come on 8th, we will hear you on 8th. So in that case, my lord, there was small request. If your lordship could. You are wasting time of this court. There are others who are waiting. चुनाव चल रहे हैं तो क्या हो गया? तो उसको 17 के बाद का कुछ नहीं नहीं, 17 के बाद नहीं. चुनाव में इनका क्या रोल है? इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इसमें? कौन सी मशीनरी है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अरे तो ये जांच तो इनको करनी है. इनका क्या रोल है? एफिडेविट दे दें कि इनका इनके ड्यूटी लगी हुई है. सर हाँ, फिर क्या डिफिकल्टी होता है? डोंट ट्राई टू मेक लेम एक्सक्यूजेस. सर एक मिनट में बोल सकता सॉरी, हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप मैटर इज ओवर. कम ऑन 8th एंड एड्रेस दिस कोर्ट ऑन 8th. सर थैंक यू सर।